Everybody's screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now next is see chapter number 2, characteristics of three-phase alternator. Now in this chapter we have to discuss about the alternator, है कि नहीं? Alternator का जो armature है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. Armature is the rotating part. Now everybody knows armature is the stationary part when we are talking about alternators. Inside the armature there are conductors are standing. And what is happening? There is a main field. The main field is due to the poles. Okay. Now main field is linked with the armature conductors. d phi by dt takes place. EMF is induced inside the armature conductors. Okay. Now there is a closed path to this armature. There is a closed path for this armature conductors. So because of this EMF, current I start flowing into the armature. And because of current I, the flux phi A will produce. So in system, there are two fluxes. First one is the main flux, which is called as, or main field flux, which is called as phi F. And there is a second flux, which is called as the phi A, armature flux. Okay. Then what is the effect of this phi A on phi F? That we have to see. बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ अभी डायग्रामेटिकली हम लोग देखेंगे एक एक चीज. So see the parameters of armature winding. What are the parameters of armature winding? Armature पे फोकस करो अभी. आर्मेचर के बारे में बात करें. आर्मेचर रेजिस्टेंस रहता है which is denoted by RA. आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस है which is XL. And the reactance corresponding to armature reaction will be XAR. The reactance corresponding to armature reaction बोल रहे हैं कि नहीं? Reactance मतलब X. Armature reaction के according है इसलिए AR. Okay. So one by one we will see. First one is what? Armature resistance RA. तो armature resistance तो सबको पता है. Armature either your conductors are connected in star fashion or in delta fashion, right? Yes, ma'am. Yes. Suppose your our armature is connected in a star fashion like this. So we have to find out the RA. This is RA. This is RA. This is RA. Okay. These two are in series, and this series combination is connected in parallel with this third. जब भी तुम लोग स्टार के बारे में बात करते हो बेसिक इलेक्ट्रिकल में तुम सीखे है ना. Whenever there is a star or a delta, what will happen? Any two of the resistors are connected in series, so that's why we can directly add them. RA plus RA to RA, and this combination will be in parallel with the third branch. So this 2RA is parallel with this RA. समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? So मैम नहीं, प्लीज एक बार दोबारा बता दें. whenever we are talking about a star connection or delta connection, okay, and we have to find out the equivalent resistance of this combination. ये पूरे combination का क्या बोलते हैं? Equivalent resistance निकालना है. मतलब resistance of this branch plus resistance of this branch plus resistance of this branch, right? How to find out the equivalent resistance? So whenever we are finding out the equivalent, any two branches are in series. Okay. Series में है तो direct addition होगा. RA plus RA will be 2RA. And this series combination will be in parallel with the third branch. So 2RA, इसको ऐसा लिख सकते हैं. 2 value RA है. 2RA plus 1 by RA. हाँ, is in parallel with the RA. Plus 1 by RA नहीं आएगा. और फिर इन दोनों का हमको करना पड़ेगा है कि नहीं? This into this divided by this plus this, right ना? तो so see how I have did this. See, to find out the total the equivalent resistance between this terminal R and Y. Okay, सबसे पहले R and Y का अगर निकालना है हमको, R and Y को ऑब्जर्व करो. R and Y तो ये दोनों आ जाते हैं सीरीज में. ओके,
ये Yes, दोनों ma'am. सीरीज में है तो RA plus RA करोगे 2RA. Then this combination is in parallel with the third one. Yes, ma'am. या फिर यहां से हम लोग आर वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं. फ्रॉम हियर RA यहाँ पे लेके RRY by 2 करेंगे. RA की वैल्यू ये निकले. ठीक है. Yes, ma'am. Yes. Then RRY is equals to RA parallel with this combination, and if you solve this you will get this total. You will get the value of RA also, and you will get here value of RRY also. This is about Ma'am, the RY is the resistance between terminals R and Y now. Yes. So RA are the three resistances which we have. Yes. RA is the individual resistance. RA is the individual resistance of R phase, Yes, ma'am. Y phase and B phase. And what is RY? RY is the combination. दोनों का मिला के ये RY. ऐसे ही YB. मैम तो यहाँ पे पहले हम सीरीज में लेंगे RA plus RA, तो हमारे पास 2RA आ जाएगा. Yes. एंड उसके बाद जो थर्ड RA है हम उससे पैरेलल लेंगे. सो 1/2RA plus 1/RA. हाँ वो जो कुछ भी है कैलकुलेशंस करो. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है RA is parallel with 2RA, है कि नहीं, ओहम पर फेज. फिर उसको सॉल्व करके तुमको क्या मिलता है, 2/3 ऑफ RA मिलता है. तो अगर तुमको RA निकालना है तो ये यहाँ पे चले जाएगा. सो इट विल बी, ये 2/3 है यहाँ पे होगा 3/2 ऑफ RRY. ओके. देन आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस. थर्ड फैक्टर क्या है, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस. ये देखो, नॉट थर्ड, सेकंड, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस. तो सबको पता है लीकेज, कुछ जो कोई भी फ्लक्स आर्मेचर में क्रिएट होते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. ये अपना एक स्लॉट है, इसमें कंडक्टर है. कंडक्टर में ईएमएफ आ गया, ईएमएफ के कारण करंट आ गया, करंट के कारण फ्लक्सेस आएंगे. बराबर है. तो वो फ्लक्सेस देखो, ये फ्लक्सेस है. करंट इज गोइंग इनसाइड द पेज ऑफ पेपर, है कि नहीं. तो डायरेक्शन हमने कैसे दिखाई, क्लॉकवाइज. तो ये जो फ्लक्सेस है ये इंटेंडेड है कि मतलब जो थोड़े बहुत वेस्ट हो रहे. देखो लीकेज फ्लक्स, लीकेज कौन सी भी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, जो अनइंटेंडेड पाथ को फॉलो करता है कि नहीं. उसका पर्पस एक है, Yes. उसका इंटेंशन एक है, एंड इट इज फॉलोइंग अनइंटेंडेड पाथ. इट इज कॉल्ड द लीकेज फ्लक्स. सो सी आर, और ये लीकेज फ्लक्स के कारण ड्रॉप होता है. बराबर है ना. जितना भी फ्लक्स मेरे क्रिएट हो रहे हैं तो ये सारे फ्लक्स यूज होने चाहिए, बट ये यूज नहीं हो रहे हैं. ये थोड़े वेस्ट हो रहे हैं एयर गैप में. तो ये वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं. समझ में आ रही है बात. जो कुछ भी एमएफ Yes, हाँ, ये वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं, इसलिए इसको एक काइंड का रिएक्टेंस ही बोला जाता है. सबको रिएक्टेंस कंसेप्ट क्लियर है ना. द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, ये तीनों चीजें क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर एकदम. No, ma'am. Please repeat. yes. Hello. देखो सिस्टम में रेजिस्टेंस रहता है R, ठीक है, रिएक्टेंस रहता है X एंड इम्पीडेंस रहता है Z. Now what is this Z? This Z is the combination or addition of resistance and reactance. Reactance होता है complex value हमेशा. Okay. So Z impedance is equals to addition of resistance plus JX, and this X is the combination of, this X is the combination of XL and XC. Combination means addition. XL and XC. If I say your circuit is purely inductive, then देखो इंडक्टिव सर्किट है का मतलब क्या है, कॉइल में से करंट जाएगा
और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सराउंडिंग में, इसको बोलते हैं इंडक्टेंस एल, है कि नहीं। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वेस्ट होते हैं, जैसे अभी लीकेज के बारे में बात कर रहे थे, फ्लक्सेस लीक हो जाते हैं। तो वो जो लीकेज के कारण जो कुछ ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वो ड्रॉप फैक्टर इज नथिंग बट द एक्सएल। उसको क्या बोलते हैं पता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टेंस के कारण है ना, एल के कारण बोलते वक्त कैसे बोले, इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैसे ही कैपेसिटर पे भी होता है, तो इसको बोलते हैं एक्ससी। क्या बोलते हैं, एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इन दोनों की एडिशन इज नथिंग बट योर टोटल रिएक्टेंस एक्स। Now what is the value of this XL? XL is 2 pi FL. अगर जिसको पता नहीं है ये, तो तुम ये लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ XC इज 1/2 pi FC। मुझे अभी एक बात बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। अगर हमारा सप्लाई DC है तो क्या मुझे x की वैल्यू मिल सकती है वहां पे? अगर मैंने बोला माई सप्लाई इज DC, डीसी सप्लाई Yes, की ma'am. डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बोलो? मैम नो फ्रीक्वेंसी, कोई टाइम साइकिल तो होता ही नहीं मैम। हाँ तो जीरो है ना फ्रीक्वेंसी। जीरो, यस मैम। तो एक्सेल के फॉर्मूला में देखो फ्रीक्वेंसी है, तो अगर तुम डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो डालोगे तो यू विल गेट जीरो एक्सेल, राइट। तुम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डालोगे तो यू विल गेट द जीरो एक्सी ऑल्सो। 1 सेकेंड। यस ओके, सो व्हेन हम लोग बोलते हैं ना डीसी में लॉसेस कम है कंपेयर टू एसी। समझ में आ रहा है सबको क्यों डीसी में लॉसेस कम है? क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी ही नहीं होती, और हर एक ये फ्रीक्वेंसी, ये जो लॉसेस है इसमें फ्रीक्वेंसी है। अगर तो इसके Yes, वजह ma'am. से, हाँ इसके वजह से जब भी डीसी सर्किट के बारे में बात करेंगे तो एक्स नहीं होता उसमें, ना जेड होता है, उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होता है। जब भी डीसी सर्किट ड्रॉ करोगे तो हम लोग देखो ऐसा रेजिस्टेंस निकालते हैं सिर्फ, और उसको एक नीचे क्या करते हैं, एक बैटरी या फिर सेल लगाते हैं, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव डीसी है। डीसी सर्किट में कभी एक्स एंड एल आ ही नहीं सकता, ये दो कंपोनेंट आते ही नहीं उस सर्किट में, समझा तुमको? Yes, ma'am. Yes. So this is तो we are talking about this reactance. तो बिकॉज ऑफ वो जो फ्लक्सेस थोड़े बहुत लीक होने वाले हैं, उसके कारण जो ड्रॉप होगा दैट इज कॉल्ड एज, और दैट उस लीकेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसका उस फैक्टर का क्या नाम है? Leakage factor. हाँ, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस? आर्मेचर में जो लीकेज फ्लक्स होने वाले हैं उसके वजह से जो आने वाला रिएक्टेंस है, और उसको डिनोट कहाँ से करते हैं हम लोग? एक्सएल से। लीकेज है ना, तो एक्स एल 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 क्या दिखा रहा है? लीकेज दिखा रहा है, समझा क्या? एक्सएल, एक्स के बारे में Yes, समझा ma'am. है अभी सबको? दिस इज फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल। अगर इंडक्टिव लोड रहेगा, ये तो पता है मुझे, ऐसा लगता है ना। अगर मैंने बोला लोड रेजिस्टिव है, तुम्हारा लोड जो है पूरा रेजिस्टिव है, व्हाट इज द रेजिस्टिव लोड? कि कंडक्टर में से तुम करंट पास ऑन करोगे और हीट प्रोड्यूस्ड होगी, अगर ऐसा लोड है तो उसको रेजिस्टिव लोड बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयन हो गया, इनकैंडेसेंट लैंप हो गया, है ना। जो येलो कलर का लैंप रहता था देखो घर में पहले, अभी पुराने, अभी यूज नहीं होते। Yes, ma'am. तो दोज आर रेजिस्टिव लोड्स, ओके। रेजिस्टिव लोड में योर वोल्टेज, whatever your voltage you are giving and current, they are in phase with each other, ऐसा। this is voltage phasor and this is current phase. They are in phase, total in phase. Now what is the meaning of in phase? तो वेव फॉर्म से समझे तो ऐसे समझेगा,
अगर ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है तो ये करंट की वेवफॉर्म होगी। करंट हाँ, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम है, देखो ये कम है ना एम्पलीट्यूड करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा Yes, कम है, बट फेज डिफरेंस जीरो है। जहां पे वोल्टेज खत्म वहां पे करंट खत्म, जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम वहां पे करंट मैक्सिमम। इसको बोलते हैं इन फेज होना। ये किसके केस में? ये रेजिस्टिव के केस में। व्हाट अबाउट द इंडक्टिव लोड के केस में? इंडक्टिव लोड के केस में अगर वोल्टेज ऐसा है रेफरेंस, तो तुम्हारा करंट हमेशा 90 डिग्री लैगिंग रहता है फॉर प्योरली इंडक्टिव लोड। When I Yes, say ma'am. your load is purely inductive, that time your current is lagging your voltage by 90 degree like this. वेवफॉर्म तो तुम इमेजिन कर ही सकते हो कैसा आएगा। अगर ये वोल्टेज है सपोज 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है ना, तो ऐसे वेवफॉर्म स्टार्ट करो। यहाँ पे वो मैक्सिमम जाना चाहिए, यहाँ पे फिर से मिनिमम आना चाहिए, और नीचे ऐसा इसको खींचोगे, यहाँ पे मैक्सिमम। इसको बोलते हैं 90 डिग्री का फेज डिफरेंस मेंटेन किया। समझा क्या क्या बोलने की कोशिश? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ये वोल्टेज है, ये करंट है। और अगर तुम कौन रह गया अभी? ये इंडक्टिव है। अभी कैपेसिटिव लोड के बारे में बात करेंगे। अगर सी है सिस्टम में, Current leads the voltage. हाँ, अभी देखो करंट लीड्स द वोल्टेज, वेरी नाइस। अभी इसका हमने देखा रेजिस्टिव लोड मतलब क्या, आयन है या फिर क्या है वो, और लैंप है, एवरीथिंग। इंडक्टिव लोड मतलब अपने मोटर्स, अपने जो सारे मोटर्स है ना, जिससे भी वाइंडिंग से करंट फ्लो करो और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी, ऐसा कोई भी मशीन है वो आता है इंडक्टिव लोड के अंदर। और इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोड इंडक्टिव ही रहता है। ओके, द थर्ड टाइप इज कैपेसिटिव। there is no as such load is present as a capacitive load. कोई भी लोड कैपेसिटिव लोड रहता नहीं है। हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बाय एडिंग कैपेसिटर बैंक्स इनटू द सिस्टम। हम लोग कैपेसिटर बैंक ऐड कर सकते हैं सिस्टम में टू गेट दिस इफेक्ट कि हम लोग करंट को क्या करें, लीड करें वोल्टेज से। बट ऐसा कुछ कैपेसिटिव लोड, ऐसा कुछ कंसेप्ट कुछ है नहीं अभी, समझा? तो क्या होता है कैपेसिटिव में? इफ दिस इज योर वोल्टेज वेवफॉर्म, योर करंट वेवफॉर्म विल बी लीडिंग इट बाय 90 डिग्री। लीड करता है 90 डिग्री से, आगे रहता है, पीछे नहीं रहता। ठीक है, वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करोगे? सपोज दिस इज अ वोल्टेज, तो ये यहाँ से आएगा, देखो करंट जो है ना, ये यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। Cos wave से होगी ना. यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे जीरो आएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम जाएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, ऐसा। इसको बोलते हैं लीड कर रहा है। ये हो गया लैगिंग 90 डिग्री, ये हो गया लीडिंग 90 डिग्री। इसलिए तुमको बेसिक इलेक्ट्रिकल में से फेज डिफरेंस, फेज एंगल, वेव फॉर्म, ये कंसेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज दिस जेड, व्हाट इज दिस आर, व्हाट इज एक्स, then what are the x is comprising of xl and xc, what is xl, what is xc। फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो डीसी में ये x का सवाल ही आता नहीं, ये 0 0 हो जाता है। x का सवाल नहीं है तो योर r इज इक्वल्स टू z हो जाता है। तो z भी क्यों बोलेंगे? डीसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस का काम रह जाता है। जब एसी सर्किट के बारे में बात करोगे तब यू हैव टू टेक इन अकाउंट z। व्हाट इज z? z इज द r प्लस jx। तो आगे इम्पीडेंस ट्रायंगल वगैरह भी सिखाते हैं, जैसे दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर रिएक्टेंस, और इनको सम करके क्या मिलेगा तुमको? z। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। दिस इज योर रेजिस्टेंस, उसको 90 डिग्री आप रहता है रिएक्टेंस, और इन दोनों की एडिशन, वेक्टर एडिशन हो गई ना। ये देखो ना, इसको वेक्टरली मैंने रिप्रेजेंट किया। दिस इज योर z। इसको, इस ट्रायंगल को बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ओके, चलो बस हो गया, ऐसा चलते रहेगा तो सिलेबस कब खत्म करेंगे? Yes, ma'am. हाँ, चलो। ये लीकेज रिएक्टेंस के बारे में। अभी रिएक्टेंस का कंसेप्ट सबको क्लियर है कि रिएक्टेंस क्या चीज है? तो ये वेस्टेज के कारण जो ड्रॉप होता है उसको बोलेंगे लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, देखो 90 डिग्री पीछे है, इंडक्टिव है ना,
तो जो वेव फॉर्म मैंने ड्रॉ की वहां पे वही वेव फॉर्म यहाँ पे, दिस इज फाई ए एंड फाई एफ. इफ दिस इज योर मेन फील्ड, this is your field flux phi f, then your phi a will be 90 degree lagging. Why this is 90 degree lagging, that I will be discussing now. Okay, आगे के point में discussing करेंगे. The next armature reaction. So this is the you know, something which is we have to discuss. Now what is armature reaction? Now armature reaction is the effect of armature flux on a main field flux. सिस्टम में दो फ्लक्स है, ध्यान से सुनो. पहला फ्लक्स मेन फ्लक्स है जो पोल क्रिएट करने वाला है. पोल ने क्रिएट कर दिया फ्लक्स. वो फ्लक्स लिंक हुआ है आर्मेचर कंडक्टर के साथ. आर्मेचर कंडक्टर के साथ d∅dt हुआ. देन ईएमएफ ई इंड्यूस्ड हुआ. ईएमएफ ई इंड्यूस्ड होने के कारण उसमें करंट फ्लो होने लगा, क्योंकि वोल्टेज आएगा तो करंट फ्लो होगा ही होगा. और एनी करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस इट्स फ्लक्स. तो आर्मेचर कंडक्टर में फ्लक्स भी आ गए, विच इज कॉल्ड एज द phi a. मेन फ्लक्स phi f and armature flux phi a. So the effect of this armature flux on your main flux is called as the armature reaction. The effect of armature flux on the main flux, whether they are adding up in a main flux or whether they are cutting up from the main flux, that effect is nothing but what? Armature reaction. अभी हमको देखना है वो ऐड होता है कि ऐड करता है मेन फ्लक्स को या कट करता है. दैट वी हैव टू सी वन बाय वन. नाउ सबसे पहली केस लेंगे विच इज यूनिटी पावर फैक्टर लोड. यूनिटी पावर फैक्टर लोड समझता है सबको? क्या रहता है यूनिटी पावर फैक्टर लोड? मतलब रेजिस्टिव लोड. हाँ ओके, यस. हाँ, है कि नहीं? यूनिटी पावर फैक्टर मतलब क्या? देखो, दोनों वोल्टेज एंड करंट इन द सेम डायरेक्शन. वोल्टेज एंड करंट सेम डायरेक्शन में है तो इसमें फेज डिफरेंस 0 हो गया ना. और पावर फैक्टर क्या होता है? cos ऑफ phi होता है कि नहीं? यस. cos ऑफ 0 इज 1. 1. हाँ, cos ऑफ 0 इज 1. तो रेजिस्टिव लोड इज द यूनिटी पावर फैक्टर लोड. समझा? तो वही देखना, जब तुम्हारा लोड रेजिस्टिव रहेगा. देखो, unity power factor. Consider purely resistive load connected to the alternator, which is having a unity power factor. So in this phase diagram we have to consider. अभी हम लोग जो phase diagram देख रहे थे उसमें हम लोग right hand side reference में voltage लेते थे. अभी हम लोग right hand side reference में लेंगे main flux, which is produced by pole, denoted by phi f. Okay, so this is your phi f, which is pointing towards the right hand side reference. देन हमेशा ये phi f की वजह से आया है EPH. ये मेन फ्लक्स की वजह से क्या हुआ है? d∅dt होके कौन आया है पिक्चर में? EPH आया है. तो ये हमेशा 90 डिग्री लैगिंग रहता है EPH phi f से. तो हमने निकाला EPH ऐसा. उसके बाद हमने क्या बोला है? हमने बोला है प्योरली रेजिस्टिव लोड बोला है. तो प्योरली रेजिस्टिव लोड है इसलिए EPH and IA they are in same direction. नीचे same phase. Yes, they are in same phase. And because of this IAPH there will be the production of this phi A, which is called as armature flux. Will be again in the same direction of IAPH. करंट के डायरेक्शन में ही फ्लक्स होता है और करंट के फेज में ही फ्लक्स का फेज. ठीक है. Now in all in the system there are two fluxes. This is main flux phi f and this is armature flux phi a. और डायग्राम में देख के समझ रहा है दोनों में कितने का फेज डिफरेंस है? 90 का. 90 का. Got it? So you just we have to plot this on the waveform. Plot first phi f starting with the 0 like this and then phi a starting from the 90. अगर नहीं समझता है ना, यहाँ से स्टार्ट करना नहीं समझता है ना, तो ऐसे ड्रॉ करने का कि चलो phi a 90 से पीछे है ना, तो इस इधर से स्टार्ट करो, इसको 90 से स्टार्ट करो, ऐसे आगे लेके जाओ, फिर ऐसे पीछे खींचो. Everybody is with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो ये पहला केस हो गया व्हेन देयर इज अ यूनिटी पावर फैक्टर लोड। सबसे इंपॉर्टेंट ये दो डायग्राम से ये समझे बस हो गया, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या लिखोगे पॉइंट्स में, यही तो लिखोगे फाई एफ इज द मेन फ्लक्स और ये दिस फ्लक्स, Yes, ma'am. हाँ ये रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ बोलो। मैम प्लीज ये नोट्स भी हमें एक बार भेज देना ताकि हम उन्हें भी रीड कर सकें। अरे जोर से बोलो क्या है, मुझे ही नहीं मैम आवाज। प्लीज ये नोट्स प्लीज हमें सेंड कर देना, हम रीड कर पाए एक बार। हाँ हाँ ऑब्वियसली, ये तो नोट्स अभी शेयर कर देती हूँ। यस ठीक है, फिर ये ईपीएच लैग करेगा 90 डिग्री से, फिर ये ईपीएच किसके, कौन लेके आएगा, ईपीएच के कारण कौन आएगा, आईएपीएच आएगा, आईएपीएच है तो फाई आ जाएगा। और इन तीनों चारों क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो दो ग्राफ्स है इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना। पहला केस समझा सबको, Yes, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, नाउ वी यस विल, मैम। yes we will move towards the next case now. Next case is zero lagging power factor load. जीरो लैगिंग पावर फैक्टर लोड मतलब क्या, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। जीरो लैगिंग का मतलब क्या होता है, प्योरली इंडक्टिव। तो अभी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फाई एफ रहेगा रेफरेंस एज इट इज, उसके पीछे ईपीएस रहेगा 90 डिग्री पीछे रहने वाला, उसमें कोई चेंज नहीं है। अभी लोड क्या बोला हमने, प्योरली इंडक्टिव लोड बोला, तो हमको पता है प्योरली इंडक्टिव लोड में करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, बराबर है ना। मेरा आवाज आ यस रहा है, मैम। हाँ यस मैम। यस यस, सो दैट्स व्हाई हमारा जो IAPH है ना, अभी यहाँ पे IA लिखा है बट IAPH जो है वो EPS से 90 डिग्री ऐसे पीछे चला गया। यस मैम। और IA के, हाँ और IA की डायरेक्शन में ही कौन आएगा, फाई ए आएगा। समझ रहा है, IA की डायरेक्शन Yes, में ही ma'am. कौन आएगा, फाई ए। अभी बाय ऑब्जर्विंग दिस फिगर, दिस इज योर मेन फ्लक्स and your armature flux, they are total in opposite direction, they are demagnetizing each other. वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर फाई एफ की वैल्यू अगर 50 वेबर है और फाई ए की वैल्यू 5 वेबर है, तो टोटल इफेक्ट होने वाला है 45 वेबर। ये जो फाई ए है ना, ये इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है, इसमें कैंसलेशन कर रहा है, नॉट एडिंग अप, it is cancelling, and that's why this effect is called as demagnetizing effect. देखो यहाँ पे लिखा है demagnetizing effect. The armature flux tries to cancel the main flux. Such a effect of armature reaction is called demagnetizing effect. What is armature reaction? It is the effect of armature flux on a main field flux. अभी इस केस में क्या इफेक्ट हो रहा है, it is cancelling up, right? Because they are in opposite direction. And so that's why this effect is called as demagnetizing effect. अभी demagnetizing effect से क्या होने वाला है, ओवरऑल फ्लक्स कम हो जाएंगे। This effect causes the reduction in the main flux and the terminal voltage will drop. अगर main flux ही कम हो जाएंगे सिस्टम में तो d phi by dt भी कम हो जाएगा, d phi by dt कम हो गया तो EPH कम हो जाएगा. So this will leads to the reduced in the terminal voltage, and this drop in the terminal voltage, this drop in the terminal voltage is more than the drop corresponding to unity power factor. ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर में सबसे कम ड्रॉप होता है, उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है लैगिंग लोड जब रहता है ना, तो इसलिए हम लोग सिस्टम में कभी भी प्योरली इंडक्टिव लोड नहीं यूज करते, हम लोग RL कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. यस मैम. यस, RL कॉम्बिनेशन, ऐसा रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड का कॉम्बिनेशन. तो अगर ऐसा वोल्टेज है तो करंट यहाँ कहाँ पे तो भी आता है, लैगिंग में ही आता है बट नॉट 90 डिग्री प्योरली, है कि नहीं, इट इज समवेयर लाइक दिस. ठीक है, केस नंबर 2 समझ में आया सबको. जीरो लैगिंग Yes, ma'am. मतलब, हाँ जीरो लैगिंग मतलब प्योरली इंडक्टिव.
अभी देखेंगे जीरो लीडिंग। जीरो लीडिंग मतलब क्या होगा रे? जीरो लीडिंग मैम कैपेसिटिव हाँ, होगा। प्योरली कैपेसिटी होगा। तो प्योरली ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं, देखो डायग्राम से ही पता चलता है। दिस इज 5F। 5F के कारण ईपीएच आएगा जो 90 डिग्री पीछे ही रहने वाला है। अभी प्योरली कैपेसिटिव बोल रहे हैं, प्योरली कैपेसिटिव है तो ईपीएच आई ए लीड करेगा ईपीएच को बाय 90 डिग्री। बराबर है ना? तो आई ए विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ 5F और आई ए की डायरेक्शन में ही कौन रहने वाला है? 5A रहने वाला है। तो इस डायग्राम से क्लियर कट समझता है 5F एंड 5A दोनों आर इन सेम फेज, ओके, एंड एडिंग अप ईच अदर। सो दैट्स व्हाई वेव फॉर्म भी ऐसा आएगा, सेम फेज वाला। अभी देखो, द आर्मेचर फ्लक्स एंड द मेन फील्ड फ्लक्स। Armature flux assists the main field flux. Such an effect of an armature reaction is called as magnetizing effect of the armature reaction. वहां पे हो रहा था डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है? एडअप हो रही है, इसलिए बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलेंगे। As this effect adds the flux to the main flux, greater the EMF get induced in the armature. And hence there is increase in the terminal voltage for leading power factor load. तो जब भी लीडिंग पावर फैक्टर लोड रहेंगे तो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? ग्रेटर होगा। ये बातें एनालिसिस की है, ये बातें समझो तुमको अगर ऐसा एमसीक्यू आया ना, if I am using if I am using capacitive load then, और अगर मेरा एक्सपेक्टेड वोल्टेज है ईपीएच 440 and I am using purely capacitive load, then what will be my expected terminal voltage? तो 440 से हमेशा ज्यादा ही रहेगा ज्यादा होगा लीडिंग। यस लीडिंग में। तो ये जो नोट्स है ना, ये निकाले हुए, ये बहुत पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स निकाले, ज्यादा लिखना भी नहीं है, कचरा नहीं है इसमें कुछ, बट ईच एंड एवरी लाइन इज मीनिंगफुल। यस मैम। Yes, so we have discussed the 3 cases so far. First one is the purely resistive, second one is purely inductive, third one is purely capacitive. Everybody is with me? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. Yes. Now next concept is armature reaction, reactance. Armature reaction के कारण होने वाला drop, that is nothing but the XAR. Third concept जो इस नोट से हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये 3 we were discussing these 3 things. यस मैम। आर्मेचर रेजिस्टेंस देखा पहले RA, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस देखा XL, and now last is reactance corresponding to armature reaction, that is XAR. आ गया armature reaction reactance. Now what is this armature reaction reactance? ये जो कुछ भी आर्मेचर रिएक्शन ऊपर हो रही है ना, कि आर्मेचर फ्लक्स क्रिएट हो रहे हैं, एक तो वो ऐड हो रहे हैं मेन फ्लक्स के साथ, अगर वो ऐड होते हैं तो इसको मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोल रहे हैं हम लोग, अगर वो कैंसल हो रहे हैं तो इसको डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोल रहे हैं हम लोग, राइट? तो ये जो कुछ सारा चल रहा है, एडिंग अप, सब्सट्रैक्टिंग अप, दिस इज नथिंग बट द आर्मेचर रिएक्शन, ओके। और इस आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो कुछ वोल्टेज में कम ज्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज में, तो वो किस फैक्टर से कम ज्यादा होगा, वो फैक्टर डिसाइड करेगा XAR। ड्रॉप होगा ना, मेरी बात समझो, ड्रॉप कैसे Yes, ma'am. दिखाते हैं हम लोग? वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ड्रॉप हम लोग दिखाते हैं हमेशा I इंटू रेजिस्टेंस करके, बाय ओहम्स लॉ, है कि नहीं? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कौन है? रिएक्टेंस है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण होने वाला वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट IXAR, और इसको I बोलने से अच्छा इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे IAPH इंटू XAR। ये जो ड्रॉप होगा और
ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होगा एंड दिस इज नथिंग बट द आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस. ओके, ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा आज डाइजेस्ट होने में, बट समझ में आता है बाद में, कुछ इतना टाइम पास है. ठीक है, तो ये तुमको पता है. अभी तुम ये XAR आ गया, ठीक है, XAR आ गया तो ये पढ़ लो बीच में. फिर हम